Okay, hello Abhinay. Uh, Today we are uh, discussing the topic that is the abnormal molar mass or Van 't Hoff factors. So earlier colligative properties. Colligative properties are relative lowering of pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point concept explained by using non-electrolytes. These all the experiments are conducted with the help of non-electrolytes, that is non-electrolytes sucrose, fructose, glucose, such as a non-electrolytes are used to conducted the colligative property, explain the colligative property concept. But Van 't Hoff factor, Van 't Hoff is a scientist name, he is a Van 't Hoff. Van 't Hoff, the colligative property he discussed, and colligative property he studied the colligative property with the help of electrolytes. He studied the colligative property with the help of electrolytes. Then he got one of the new things. Electrolytes. Already we know that electrolytes are two types: strong electrolytes and weak electrolytes. Two types of electrolytes. Strong electrolytes are NaCl, KCl, etc. Weak electrolytes acetic acid and the benzoic acid CH5COH, etc. First he using the strong electrolytes. Let's discuss strong electrolytes. Okay, look at Abhinay. NaCl, he using NaCl. NaCl, KCl, anything. If you are using here 1 mole of NaCl, 1 mole NaCl, that is 58.5 gram. 1 moles, we know that 1 mole means that is a 58.5 gram he using. When he use 58.5 gram, adding into the water, already we know that the NaCl is the ionic bond. When we are adding into the water, it dissociated to form sodium ion and chlorides. Sodium and chlorides. We are adding here 1 moles, and here they transform into 2 moles. Sodium ion, chlorides. Sodium ion first, chloride ion second. So total is 2 moles are forms here. It means here the colligative property. Colligative property means the property which depend upon number of solute particle. Right. Colligative property which depend upon number of solute particles. We are adding the solute particle here 1 mole, but here they transform into 2 moles. Right. 2 moles. It means number of colligative property are increased here. We are adding 1 mole of colligative property, number of 1 mole of solute. Here they transform into 2 moles of solute. 2 moles. It means in this case colligative property increases. Right? So colligative number of moles are increases. Colligative property increases here. Number of moles are increases means increase colligative property. Increase the colligative property. Whatever the colligative property, their value is there. That colligative property value increases. Value changes. Because colligative property depend upon number of solute particle. Colligative property depend on the number of solute particle. यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज होंगे तो colligative प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगा. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये सभी इंक्रीज हो जाएंगे अगर colligative प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएंगे तो. बिकॉज colligative प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ solute particle. Already we know the definitions. So that's why he suggested Van 't Hoff factor introduced. I is equal to normal molar mass by abnormal molar mass. So normal molar mass, and here this is the abnormal molar mass. Here we are adding only 1 molar mass, and here they transform into 2 molar mass. Abnormal molar mass they transform. Right? The same example, we are adding the 1 moles, they transform into 2 moles. If we take 1 mole of solution
if you take 1 mole of solution, NaCl solution, in which if you take 1 mole, if you take 1 mole solution, 1 mole of NaCl solution, so we are adding अगर हम NaCl साल्ट को 58.5 ग्राम दैट इज 1 मोल साल्ट को हम पानी में ऐड करेंगे। जब इसको हम पानी में ऐड करेंगे तो इसमें Na+Cl बनेगा। जब Na+Cl बनेगा तो इसमें अगर हम स्पून से या कोई बीकर से अगर इसमें से हम 1 मोल निकाल लेंगे, 1 मोल निकाल लेंगे। अगर हम कुछ चीज़ से अगर हम इसमें एक ड्रॉप निकाल लेंगे, एक ड्रॉप अगर मैं इसमें से निकाल लूँगा तो उसमें क्या होगा, उस ड्रॉप में नंबर ऑफ सोडियम आयन भी ज़्यादा हो सकते हैं या तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन भी कम हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन ज़्यादा हो सकते हैं ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन ज़्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन्स। अगर मैं इस सॉल्यूशन में से NaCl सॉल्यूशन में से मैं 1 मोल बाहर निकालूंगा, 1 मोल अगर मैं बाहर निकालूंगा तो उस मोल में से जो बाहर निकाला गया, इस सॉल्यूशन में से 1 मोल बाहर निकाला गया, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन ज़्यादा हो सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन से। राइट, समझे? अगर मैं इस सॉल्यूशन में से 1 ड्रॉप निकाल लूँगा, 1 ड्रॉप निकाल लिया तो 1 ड्रॉप के अंदर सोडियम आयन ज़्यादा हो सकते हैं क्लोराइड आयन से हो सकता है मे बी, या तो सोडियम आयन कम हो सकते हैं क्लोराइड आयन से। राइट, बिकॉज आयन्स आर मूव रैंडमली इन द सॉल्यूशन, सो दैट इज नॉट फिक्स्ड हियर। सो सोडियम आयन भी ज़्यादा हो सकते हैं क्लोराइड आयन से, या तो सोडियम आयन कम भी हो सकते हैं क्लोराइड आयन से। इट इज़ नॉट फिक्स। राइट, सो दैट्स वाई वैन ऑफ फैक्टर ने क्या लिया, अबनॉर्मल मोलर मास के लिए उसने लिया एवरेज मास, अबनॉर्मल मोलर मास के लिए उसने लिया एवरेज मास। देयरफॉर वैन ऑफ यूजिंग द एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम NaCl, सोडियम 29.25, क्लोराइड आयन 29.25। सो उसने क्या लिया, सोडियम को 40 के बजाय ले लिया, सोडियम को 23 के बजाय उसने 29.25 ले लिया, क्योंकि अगर हम 1 मोल सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें सोडियम आयन भी ज़्यादा हो सकते हैं या तो क्लोराइड आयन भी ज़्यादा हो सकते हैं। सोडियम आयन क्लोराइड आयन से ज़्यादा हो सकते हैं या तो क्लोराइड आयन भी सोडियम आयन से ज़्यादा हो सकते हैं। दैट इज रेशो फिक्स नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से उसने क्या किया, अबनॉर्मल मोलर मास को उसने एवरेज मास ले लिया, अबनॉर्मल को उसने एवरेज मास ले लिया। स्टूडेंट्स, why he using instead of 23, why he using 29.25 instead of 23, why using the sodium ion value 29.25 instead of 23, why he using chloride ions 29.25 instead of 35.5। क्यों इसने यूज़ किया, क्योंकि बिकॉज 1 मोल सॉल्यूशन हम लेंगे इस बीकर में से हम 1 मोल सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन से ज़्यादा हो सकते हैं या तो सोडियम आयन क्लोराइड से कम भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से इसने एवरेज मास लेना ठीक समझा। राइट स्टूडेंट्स, तो आफ्टर डिसोसिएशन जब NaCl डिसोसिएट होगा तो उसका मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ आयन्स, क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और इंक्रीज नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स इंक्रीज मीन्स इंक्रीज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, आफ्टर डिसोसिएशन एक चीज़ डिसोसिएट होने के बाद उसमें डिक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ आयन्स, अगर मोलर मास डिक्रीजेस एंड इंक्रीज नंबर ऑफ आयन्स, मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा एंड इंक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ आयन्स। नंबर ऑफ आयन्स इंक्रीज मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इंक्रीज मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो इंक्रीजेस। राइट, तो वैन डॉ फैक्टर को हम I से डिनोट करते हैं, स्टूडेंट्स I पे। तो वैन डॉ फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर डबल हो रहा है। पहले हमने ऐड किया 1 मोल, तो सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल बन रहे हैं,
2 moles. So I is greater than 1. So number of solid particle increases to increase colligative property. Number of solid particle increases to increase colligative property. solid particle increase हो गए तो उसमें क्या होगा, colligative property भी increase हो जाएगा. तो उसकी वजह से उसने क्या किया, colligative property जो थे colligative property वैल्यू को उसने चेंज किया, क्योंकि colligative property चेंज हो जाएंगे जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे. तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो बढ़ेंगे उनको भी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा. कहकर उसने आई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इसको फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि आई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहे हैं तो उसमें आई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर. राइट स्टूडेंट्स. उसके बाद एसोसिएशन. कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट है. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड क्या, अगर हम 2 मोल ले रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट मोल ये वाला ये रहेगा, सेकेंड मोल ये रहेगा, इसको हम इस बेंजीन सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो एसिटिक एसिड क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद क्या होंगे, इस तरह से ड्रॉप्स बन जाएगा, एसोसिएट कर जाएंगे. एसोसिएट थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे को एसोसिएट करेंगे. राइट. देखो 2 मोल्स ऐड कर रहे हैं, मैं एक सिर्फ लूँगा यहाँ पर 2 मोल ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है 1 मोल्स बन रहा है. अगर हम यहाँ पर लेंगे 10 मोल्स तो यहाँ पर कितने मोल्स बनेंगे सॉल्यूशन में, 5 मोल्स. अगर मैं यहाँ पर 20 मोल्स ले लूँगा, 10 तो यहाँ पर कितने मोल्स बनेंगे, 10 मोल्स. अगर हम 20 मोल्स लेंगे तो 10 मोल बनेगा. अगर हम पर 40 लेंगे तो यहाँ पर 20 बनेगा. राइट. तो 1 मोल का मास कितना होगा, 60 होगा. 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड मोलर मास मोलर मास 60 है. जब एसोसिएट हो जाएगा तो 1 मोल का मोलर मास क्या है, यहाँ पर डबल हो रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. हमने ऐड किया 2 इलेक्ट्रोलाइट मगर यहाँ पर बन रहे हैं 1 इलेक्ट्रोलाइट्स बन रहे हैं. हमने ऐड किया 2 सॉल्यूट, वाटर के अंदर बन रहे हैं 1 सॉल्यूट. 1 सॉल्यूट बन रहा है. 1 सॉल्यूट बनने के बाद उसका मोलर मास यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहे हैं तो मोलर मास इंक्रीज हो रहा है. राइट. बट इन केस ऑफ डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहे हैं तो मोलर मास यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. राइट. अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर डिसोसिएट हो रहे हैं तो मोलर मास डिक्रीज हो रहा है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएट हो रहे हैं मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहा है. 10 से 5, 40 से 20 बन रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहे हैं, मोलर मास इंक्रीज हो रहा है. पर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड 20 बन गया यहाँ पर. 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड यहाँ पर एक्चुअली 60 है. राइट. वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड है, सॉलिड पार्टिकल ऊपर डिपेंड है. ऑलरेडी द एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ. इफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीजेस, अगर सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज होंगे देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो डिक्रीजेस. सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगा. राइट. तो उसकी वजह से द आई नॉर्मल मोलर मास बाय अबनॉर्मल मोलर मास. तो उसमें हमने क्या लिया, नॉर्मल मोलर मास कितना है यहाँ पर 60 और अबनॉर्मल मोलर मास कितना है 120. तो कितना होगा यहाँ पर आई 0.5. तो आई का वैल्यू क्या है यहाँ पर, लेस देन 1 है. आई इज लेस देन 1. आई लेस देन 1 मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस आफ्टर एसोसिएशन एंड इंक्रीज मोलर मास. आई लेस देन 1 मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा आफ्टर एसोसिएशन एंड इंक्रीज मोलर मास. मोलर मास यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं. राइट. ओके, दिस इज अबाउट कोलिगेटिव अभिनय. दिस इज अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन once again if you are not understood the topics. Okay.
थैंक यू।